A Roadside Stand, the beautiful realistic poem from class 12 written by Robert Frost. Yes, today in this video we are going to cover this particular poem. Hey, I am Shweta, your English teacher, and I welcome you all to my YouTube channel. How are you? Hope you all are absolutely fine. चलिए आज की पोएम करेंगे A Roadside Stand, which is written by Robert Frost. This is really a very beautiful poem. As you know, हमारे जो Robert Frost हैं वो किस के बारे में जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं अपनी रियलिस्टिक पोएम्स के बारे में. एंड दिस इज द वन वी आर गोइंग टू डू टुडे. लेट्स गेट स्टार्टेड दिस. सबसे पहले लेते हैं पॉइंट इंट्रोडक्शन. पोएट किसी इंट्रोडक्शन की इनको जरूरत ही नहीं है. ही इज द एन अमेजिंग पोएट ऑफ हिज टाइम. एवरीबडी नोज अबाउट हिम. 9th में हम लोगों ने एक पोएम पढ़ी है रोड नोट टेकन, written by Robert Frost. Then 10th में हमने poem की है. Now again in class 12. Robert Frost, born on March 26, 1874 and died on January 29, 1963, was a renowned American poet celebrated for his realistic depictions of rural New England life, utilizing colloquial speech to explore complex social and philosophical themes. रियलिस्टिक लाइफ के बारे में लिखते हैं. सोसाइटल इश्यूज जो हैं, जो चीज़ें हम रियल लाइफ में फेस करते हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है. Frost is the only poet to receive 4 Pulitzer prizes for the poetry. He was awarded the Congressional Gold Medal in 1960 for his poetic works. He is famous for his iconic poems like Road Not Taken, Stopping by Woods on Snowy Evening, and Mending Walls. So this was the short introduction of Robert Frost. चलिए आगे देखते हैं हमारी पोएम का इंट्रोडक्शन. The poem A Roadside Stand describes the miserable condition of the people living in the countryside. उन लोगों की मिजरेबल कंडीशन के बारे में बताता है जो कंट्री साइड में रहते हैं. द सिटी पीपल हु ड्राइव थ्रू द कंट्री साइड हार्डली स्टॉप एट द रोड साइड स्टैंड, नॉट डू दे केयर फॉर द पीपल हु रन इट. तो जो शहर के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं. एक रोड है, उसके साइड में एज पर एक छोटा सा स्टैंड बनाया गया. स्टैंड meant for selling some veggies and all, कुछ छोटी मोटी चीजें बेच करके, so that वो अपनी अर्निंग कर सकें, like the people who are living in countryside. ठीक है. So if at all they do stop, they do so to criticize the place and the people. It describes the lives of the poor people with pitiless clarity, with deepest sympathy and humanity. फर्स्ट ऑफ ऑल रोड साइड स्टैंड की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है. इवन अगर वो रुकते भी हैं तो फॉर देयर ऑन पर्पसेस. एंड क्या करते हैं, उनमें कमियां निकालने के लिए. ठीक है. तो ये सब जो है इस पोएम में आज हम पढ़ने वाले हैं. इसने किसकी लाइफ को, जो पुअर पीपल है उनकी लाइफ को डिस्क्राइब किया है कि कैसे पिटीलेस लाइफ दे आर लिविंग. चलिए अब देखते हैं थीम ऑफ द पोएम. व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पोएम? द पोएम A Roadside Stand is the poet's plea for consideration. Sorry, what happened? Okay. For consideration for the simple people of the countryside whose lives have shown no प्रोग्रेस. किसके बारे में है कि रोड साइड स्टैंड पे जो लोग रहते हैं, दोस पुअर पीपल जिनकी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही, उसके बारे में ये पोएम है. तो पोएट्स प्ली फॉर कंसिडरेशन, पोएट रिक्वेस्ट कर रहा है कि उनको भी कंसिडर किया जाए, उनके जो एफर्ट्स हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए. दे आर नॉट बेगिंग, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ फेवर, दे आर आस्किंग फॉर अ लिटिल मनी विद देयर ऑन एफर्ट्स. सो ही एक्सप्रेसेस his pain at their sadness and sorrow and seeks support and relief for them. He hopes someone would work unselfishly for their rehabilitation and not exploit them. Poet यहाँ पर आशा करता है कि कोई तो आएगा उनकी तरफ जो means with selflessness वे में उनकी हेल्प करेगा, selflessly हेल्प करेगा उनकी. Okay, so he brings out of the He brings out of the wide disparity between haves and have not,
with pitiless clarity and humanity and seems to suggest that the economic well-being of country depend on a balanced development of villages and cities। दोनों में बैलेंस होगा, गांव में शहरों में, वहां पर बैलेंस होगा तभी कोई भी सिटी जो है, कोई भी कंट्री जो है वो डेवलपमेंट की तरफ चलेगी। तो पोएट क्या कहते हैं, पोएट की ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कहीं जाते हैं, रोड साइड पे अगर कोई स्टैंड देखते हैं तो उनके उन एफर्ट को कंसीडर कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनसे कुछ ले लिया कीजिए, ठीक है। तो सेल्फिशनेस वे में पोएट चाहते हैं कि उनकी हेल्प करो, मतलब इंस्टेड ऑफ गिविंग सम मनी विदाउट परचेजिंग एनीथिंग, यू नीड टू परचेज समथिंग फ्रॉम देम सो दैट उनको ये भी ना लगे कि आप उनको भीख दे रहे हो। दे आर नॉट आस्किंग फॉर इट, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जो सामान, छोटा छोटा सामान, कुछ वेजीज, कुछ फ्रूट्स, कुछ भी छोटा मोटा सामान वो लेकर बैठे हैं, तो उससे क्या हो, उनकी थोड़ी सी अर्निंग हो जाए। वो वहां पर सामान लाते हैं, उसको सेल करते हैं सो दैट उनकी अर्निंग हो जाए। बट होता क्या है कि लोग इतनी स्पीडली उनके सामने से निकल जाते हैं, नोबडी पे हीड्स टुवर्ड्स देम, ठीक है। तो इससे क्या होता है, देयर लाइफ इज इट इज नॉट गोइंग वेल। चलिए, हाँ जी, पोएम। The little old house was out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. A little old house out with a little new shed in front at the edge of the road where the traffic sped. रोड इज देयर एंड फिर एज पर क्या है, एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड बनाया है जिस पर नया नया जो है एक शेड डला है। वहां पर रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, ऐसा स्टैंड जिसकी हालत बहुत खराब है। एंड इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डॉल ऑफ ब्रेड, वो पैथेटिकली मतलब मीन्स दैट इज नॉट इन गुड कंडीशन। बट उनकी क्या है कि दे आर नॉट आस्किंग फॉर मनी, वो वहां पर किसी चैरिटी के लिए या भीख मांगने के लिए नहीं बैठे हैं। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं थोड़ा सा पैसा, फॉर सम मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंड। कि जो लोग हैं वहां पर, उनकी जो लाइफ है वो मुरझाती जा रही है, खत्म होती जा रही है, सो दैट जो शहर के जो लोग हैं उनको जो अच्छी लाइफ मिल रही है, वाई, बिकॉज दे हैव मनी। तो उस कैश का थोड़ा सा फ्लो उनको भी मिल जाए सो दैट उनकी लाइफ भी एक स्मूथ वे में चल सके, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फर्स्ट पैरा कि एक रोड के किनारे पर सामने की तरफ एक छोटा सा रोड साइड स्टैंड, मतलब एक स्टैंड बनाया है जो रोड के साइड में है, जिसकी हालत बहुत खराब है। बट इट डजंट मीन कि वो वहां पर भीख मांगने के लिए बैठे हैं, उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है। वो वहां पर सामान लाते हैं और उसको सेल आउट करते हैं सो दैट वो थोड़ा सा पैसा कमा सकें, ठीक है। वो ये नहीं चाहते कि कोई भी आकर उनको किसी तरह का फेवर करके जाए, नहीं, दे आर आस्किंग फॉर द मनी। जिससे क्या होता है कि जैसे शहर के लोगों की लाइफ स्मूथ चल रही है तो उनकी लाइफ भी एटलीस्ट ट्रैक पर आ जाए, जो उनकी डेली नेसेसिटीज हैं उनको वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट पैरा देखेंगे, द पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ड विद द माइंड अहेड, or if ever aside a moment then out of source at having the landscape marred with the artless paint of signs that with N turned wrong and S turned wrong offered for sale wild berries in the wooden quartz or crook-necked golden squash with silver warts or beauty rest in the beautiful mountain scene, ठीक है। तो पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड, माइंड मतलब दिमाग क्या है कि बस हम सीधे चलते चले जा रहे हैं, और अगर एक मोमेंट के लिए वो रुकते भी हैं वहां पर तो उनके क्या पर्पसेस हैं। हैविंग द लैंडस्केप मेयर्ड विद द आर्टलेस पेंट, मतलब वो क्या कह रहे हैं, वो कमियां निकालने की, देखो कि कैसा भद्दा सा पेंट किया गया है, और जो साइन है कि एन रॉन्ग साइड है, एस रॉन्ग साइड है, मतलब नॉर्थ और साउथ का जो डायरेक्शन बता रहे हैं दैट इज नॉट लोकेटेड प्रॉपरली। तो वो कमियां निकाल रहे हैं वहां पर, वो जाके उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि यस दे पीपल आर सिटिंग देयर, कि उनसे कोई सामान कुछ खरीद ले, नहीं, वो क्या कह रहे हैं कि कैसा भद्दा सा पेंट किया हुआ है, इतनी ब्यूटीफुल सीनरी को खराब कर दिया है, इन्होंने तो साइन भी उल्टे लगाए हुए हैं। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज, और कौन, वो क्या कर रहे हैं, वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स
क्वार्ट्स मीन्स काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं टोकरी काइंड ऑफ, ठीक है, कि वुडन क्वार्ट्स में क्या है, वाइल्ड बेरीज हैं, सिल्वर क्वार्ट्स में क्या है, गोल्डन स्क्वैश, क्रूक नेक्ड यानी कि crook necked golden squash, it is some edible means fruit it is, और beauty rest in the beautiful mountain scene, और वो जो beautiful जो सीनरी है वहां पर, ठीक है, तो ये सब चीजें वहां पर हैं, बट द थिंग इज कि उन सब का ध्यान कहाँ जा रहा है, उन सब का ध्यान किस पे जा रहा है कि इन्होंने तो एन उल्टा लगाया हुआ है, एस उल्टा लगा हुआ है, गंदा सा पेंट किया हुआ है, ये नहीं देख रहे कि वहां पर सीनरी भी है, वहां पर वो लोग बैठे हैं डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स लेके, वेजीज लेके बैठे हैं, तो वो किस लिए बैठे हैं, वो उनको बेचना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ बाइंग समथिंग फ्रॉम देम वो क्या कर रहे हैं, वहां पर कमियां निकाल रहे हैं. You have the money, but if you want to be mean, why keep your money and go along? अब पोइट क्या कह रहे हैं कि हाँ ठीक है आप लोगों के पास पैसा है, बट मतलब आप इतना मीन कैसे हो सकते हो, ठीक है आपके पास पैसा है, आप अपना पैसा रखो और सीधे निकल जाओ, आप उनसे कुछ खरीद नहीं सकते तो कम से कम उनको हर्ट भी मत करो. द हर्ट टू द सीनरी वुडंट माई कंप्लेन, जो सीनरी को वो मतलब हर्ट कर रहे हैं वो मेरी कंप्लेन नहीं है. सो मच एज द ट्रस्टिंग सोरो व्हाट इज अनसेड Here far from the city we make our roadside stand. Like उनसे मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है. The thing is कि रोड से दूर अगर वो रोड साइड स्टैंड बना है and ask for some city money to feel in hand to try if it will not make our being expand and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. तो वो कहते हैं कि हमें क्या है कि थोड़ा सा पैसा हमारे हाथ में आए तो वो उसको ट्राई करना चाहते हैं, और वो क्या है कि वो ये नहीं चाहते कि जो उनसे जो बड़े बड़े वादे किए गए हैं, एंड गिव अस द लाइफ ऑफ मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस, मूविंग पिक्चर्स प्रॉमिस दैट द पार्टी इन द पावर इज सेड टू बी कीपिंग. मतलब उनको बड़े बड़े वादे, जब क्या होता है, जब इलेक्शंस होते हैं, जब वोट की बारी आती है तब बड़ी बड़ी पार्टी आती है, उनको बड़ी बड़ी वो दिखाती हैं, सपने दिखाते हैं उनको कि हम यहाँ पे ये कराएंगे वो कराएंगे ऐसे कराएंगे, और बाद में उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है. तो वहां पे वो यही कहना चाह रहे हैं कि ठीक है इन सब को लेकर मुझे कंप्लेन नहीं है, बट द थिंग इज कि हम भी थोड़ा बहुत पैसा चाहते हैं, और ये जो पार्टी है जो पावर में है, जो हमसे वादे किए गए हैं वो उनको क्या करें कि एटलीस्ट उन प्रॉमिस की तरफ ध्यान दे. नेक्स्ट देखते हैं. इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दीज पिटिफुल किन जो लोग हैं, ठीक है, किसको कहा गया भाई पिटिफुल किन, सो सॉरी व्हाट इज ठीक है, are to be bought out and merciful gathered in to live in the village next to the theater and store where they won't have to think for themselves anymore. ये न्यूज में सुना जा रहा है कि उन जो वो लोग हैं उनको क्या है, उनको वहां से जगह खरीद करके कहीं और उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा टू लिव इन विलेज नेक्स्ट टू द थिएटर और स्टोर, वहां पर उनको शॉप खुलवाई जाएंगी या वहां पर काम करवाया जाएगा. वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनीमोर, जहां उनको अपने बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, उनका काम चल जाएगा. ये सब क्या है, ये सब पार्टियों के वादे हैं कि हम आपको यहाँ से ले जाएंगे बड़े बड़े शहरों में या अच्छे अच्छे गाँवों में जहाँ पर थिएटर हैं, ठीक है, मल्टीप्लेक्स हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, वहाँ पर हम आपको कुछ काम देंगे, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है. बट बाद में क्या होता है, nobody cares for them. While greedy good doers, beneficial beasts of prey swarm over their lives, enforcing benefits that are calculated to soothe them out of their wits. While greedy good doers, सबसे पहले तो ये बता दो कि यहाँ पर poetic device कौन सा है. greedy good doers, देखो पोएटिक डिवाइस ऑब्वियसली अब तो आपको पता होने चाहिए, देयर शुडंट बी एनी डाउट. देखो एक तरफ ग्रीडी बता रहे हैं, एक तरफ गुड डूअर्स बता रहे हैं, तो टू अपोजिट थिंग्स आर सिटिंग टुगेदर, ठीक है. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ये है हमारा
ऑक्सीमोरॉन। अभी करेंगे पोएटिक डिवाइसेस के, ठीक है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, बी भी यहाँ पे एलिट्रेशन हो गया हमारा। मतलब ये लोग जो लालची हैं, जो दिखाते हैं कि हाँ वो बहुत अच्छा करते हैं, जो सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं, वो उनकी लाइफ पर ऐसे मतलब एक स्वॉर्म की तरह आते हैं उस टाइम तो, कि उनको क्या किया जाता है, दैट आर कैलकुलेटेड टू सूद देम आउट ऑफ देयर विट्स एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप they sleep all day, destroy their sleeping at night and the ancient way। वो क्या है, उनको उस टाइम तो ऐसे झुंड के झुंड आते हैं कि हाँ आप ये कीजिए वो कीजिए, हम आपके लिए ये करवाएंगे वो करवाएंगे, और फिर जैसे ही उनका मतलब पूरा होता है वो चैन की नींद सो जाते हैं। बट जो लोग जो रोड साइड स्टैंड में रह रहे हैं, जो आसपास यहाँ पर रहते हैं, उनकी रातों की नींद उड़ जाती है। Sometimes I feel myself I can hardly bear thought of so much childish longing in vain। अब यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं कि मुझे खुद ये लगता है कि I can hardly bear the thought of so much childish longing in vain, the sadness that lurks near the open window there। मतलब वो आंखें, वो दुख जो उनकी आंखों से झांक रहा है, जो वो खिड़की वहां पर खुली हुई है उसमें से वो जो आंखें हैं जो झांक रही है, उनमें से वो दुख नजर आ रहा है। That waits all day in almost open prayer, जो पूरा दिन प्रेयर में और वहां पर वेट करते रहते कि कोई तो आए और हमसे कुछ खरीद ले। फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, कि हाँ ब्रेक मतलब आवाज आए, गाड़ी रुकने की आवाज आए, ब्रेक लगने की आवाज आए। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ी रुकने की आवाज आए। ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार दैट पासेस, उनमें से कोई भी जो हजारों गाड़ियां वहां से निकल के जाती हैं, कोई तो हो जो रुके। तो वहां से विंडो में से जो आंखें झांक रही होती है, उनका जो दर्द है, और जो पूरा दिन प्रे करती रहती हैं कि इतनी जो गाड़ियां जा रही हैं उनमें से कोई तो रुके, कभी गाड़ी रुकने की आवाज आए, कभी ब्रेक लगने की आवाज आए। जस्ट वांट टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइस, और वो रुकते हैं तो किस लिए, क्या करते हैं कि यहाँ पर प्राइजेस क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप बट ओनली टू प्लो अप ग्रास, एक ने तो क्या है वहां पर गाड़ी घुमाई तो वो जो घास वहां से उखड़ गई है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न, मतलब गाड़ी घुमाने में बस वो घास खराब करने के लिए यूज किया है। एंड अनदर टू आस्क द वे वेयर इट वाज बाउंड, और एक गाड़ी रुकती है तो वो बस रास्ता पूछ रही है। मतलब उनकी कंडीशन किसी को नहीं पता है, दे आर नॉट दे जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। किसी को नहीं पड़ी है कि चलो इनसे कुछ सामान ले लिया जाए, नहीं, उनके अपने ही पर्पसेस हैं, वो अपने ही इंटेंशन है उनके। एंड अनदर टू आस्क could they sell it a gallon of gas, they couldn't, they had none, didn't it see। अब यहाँ पर उनको गुस्सा आ जाता है कि कुछ लोग तो क्या करते हैं कि गैलन ऑफ गैस के लिए रुकते हैं कि क्या उनके पास है, और वो मतलब वो ये फ्यूल के लिए वो रुकते हैं। तो यहाँ पर गुस्सा, तो वो उनको दिख नहीं रहा है, वो देख नहीं सकते। क्या उनको लगता है उनके पास ऐसे गैस मिलेगी, क्या उनको लगता है उनके पास इतनी सारी चीजें हैं, इस तरह की चीजें उनके पास मिलेगी, तो वो क्यों जाते हैं उनका मजाक उड़ाने के लिए। No, in country money, the country scale of gain, the requisite lift of spirit has never been found। ठीक है, इस मतलब कंट्री में पैसा है, सारी चीजें हैं, ग्रोथ है, बट लेकिन क्या है, स्पिरिट नहीं है। और so the voice of the country seems to complain, और वही आवाज है जो हमेशा क्या है, कंप्लेन करती रहती है। I can't help owning the great relief it would be to put these people at one stroke out of their pain। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब मैं कुछ ऐसा कर पाऊं कि एक झटके में इनको इनके दुख से मैं बाहर कर दूं, एक झटके में मैं इनका सारा दुख खत्म कर दूं। कौन कह रहा है ये जो पोएट हैं वो कह रहे हैं, ठीक है, जो पोएट है वो कह रहे हैं। टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू दिस सीन आई वंडर हाउ आई शुड लाइक टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और नेक्स्ट डे जब मैं वापस आऊं, मुझे ऐसा मतलब अब पोएट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा कर दूं कि किसी तरह से ये अपने दुख से बाहर आ जाए, और इनका दुख, अगर ये अपने दुख से बाहर आ जाते हैं तो मुझे भी एक रिलीफ मिलेगा। देखो सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है, कुछ लोग दूसरों के दुख को देख के दुखी भी होते हैं और उनके रिलीफ के साथ खुद भी रिलीफ फील करते हैं। ठीक है, चलिए समरी। The poem A Roadside Stand, composed by Robert Frost, is about a farmer who puts a little new shed in front of his house on the edge of a road
एक सड़क के किनारे पे जो है छोटा सा घर बनाया है, शेड बनाया है, several thousands of cars speed past it, बहुत सारी गाड़ियां हैं जो स्पीड में वहां से चली जाती हैं. He desired to sell wild berries, squash and other products. अब वहां पे उनकी इच्छा क्या है, किस लिए बनाया वो शेड, कि वो कुछ खाने पीने की छोटी मोटी सी चीजें वहां पर बेच सके. He does not like charity, उसको चैरिटी नहीं चाहिए, उसको फेवर नहीं चाहिए. He tries to sell his product for money, कुछ पैसे के लिए वो अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहता है. He believes that money can give him a better lifestyle as he saw in the movies, जैसे कि मूवीज में देखते हैं कि मनी से क्या होता है, जो लाइफ में है वो ग्रोथ आता है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनको भी वो फील करना चाहते हैं. However, his hopes are never fulfilled. हालांकि उसकी जो होप है वो कभी फुलफिल नहीं हो पाती. People in the cars go past without even giving a cursory look at his stall, मतलब उनकी तरफ वो देखते तक नहीं है. And if few of them happen to look at it, they see how the letters N and S had been turned wrong. They believe that such badly painted signs spoil the beauty of the countryside. मतलब पहली बात तो रुकेंगे नहीं, और अगर रुकेंगे भी तो कमी निकालने की नहीं. N गलत साइड लिखा हुआ है, S गलत साइड लिखा हुआ है, गंदा सा पेंट किया हुआ है, पूरी सीनरी को खराब कर दिया है. So such kind of thinking the people are having. Nevertheless, a few cars did stop. कुछ गाड़ियां रुकती भी हैं. One of them desired to take a U-turn लेने के लिए. It came into the farmer's yard and spoiled the grass, घास खराब करने के लिए. Obviously वहां पर वो गाड़ी घुमाते हैं, वो घास कुचल देते हैं. So another car stopped to know the way, रास्ता जानने के लिए. And one of them stopped at it needed petrol, though it was quite evident that the farmer did not sell petrol. तो कुछ तो क्या करते हैं वहां पर फ्यूल के बारे में पूछते हैं, जबकि अंडरस्टूड है कि फार्मर्स के पास ये सब चीजें कहाँ से आएंगी भाई. ठीक है, ये अंडरस्टूड है. सो द पुअर विलेज हैड लिटिल अर्निंग. दे हैव नॉट सीन मच मनी, ज्यादा पैसा नहीं है उन लोगों के पास. दे लीड अ लाइफ ऑफ पॉवर्टी. ठीक है, पॉवर्टी मतलब गरीबी की लाइफ वो लोग जी रहे हैं. इट इज नोन दैट सम गुड डूअर्स प्लान टू रिमूव देयर पॉवर्टी. देयर एम टू बाय देयर प्रॉपर्टी ऑन द रोड साइड टू बिल्ड थिएटर्स एंड स्टोर्स. अब वो क्या है, वो क्या चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं मुखौटा डाल करके अच्छा बनने का, कि हम यहाँ से ये जमीन हमें दे दो, हम यहाँ पे थिएटर्स बना देंगे, शॉप्स बना देंगे, मल्टीप्लेक्स बना देंगे, तो तुम्हें रोजगार मिल जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, तो वहां पर एक्चुअली वो अपनी जो है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करना चाहते हैं, ना कि हेल्प के इंटेंशन से आए हैं. दे विश टू टीच देम द वेज दैट कुड चेंज देयर गुड एंड हेल्दी हैबिट्स. दे इवन एम टू टीच देम टू स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम. द ग्रीडी गुड डूअर्स एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे डिजायर टू फोर्स द बेनिफिट्स ऑन द पुअर विलेज एंड बी फूल देम. उनको मूर्ख बनाना चाहते हैं. द पोएट फील्स क्वाइट मिजरेबल एट द पिटिएबल सफरिंग ऑफ द पुअर विलेज फोक. इन पर जो है पोएट को बहुत बुरा लग रहा है. ही इवन हैड अ चाइल्डिश डिजायर. एक डिजायर है उनके मन में कि द पुअर टू बी डन अवे विद एट one stroke to end their pain, but he knew that he is childish and vain, so the desire that someone relieves him of his pain by killing him. ठीक है, चलिए बेटा, what is next now? Next we have poetic devices. First of all, transferred epithet, a figure of speech where an adjective or an adverb grammatically qualifies a noun but actually describes a different noun in the sentence. Polished, traffic, selfish, cars. यहाँ पर epithet क्या है, जहां पर क्या है, हम बात किसकी कर रहे हैं, देखो पॉलिश्ड ट्रैफिक को पॉलिश नहीं किया जा सकता. सेल्फिश कार नहीं है, उसके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, है ना, उसकी बारे में बात हो रही है. तो यहां पर क्या है हमारा ट्रांसफर एपिथेट. पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफाई किया है किसको, रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड. ठीक है, नॉन ह्यूमन थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दी है. फिर मेटाफर आ गया. मेटाफर क्या है आपका, कि जहां पर डायरेक्ट कंपैरिजन है. सो ट्रस्टिंग, सोरो. ऑक्सीमोरॉन, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, ग्रीडी गुड डूअर्स, बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे. दो अपोजिट चीजें साथ में बैठी हैं एक सेंटेंस में, तो ऑक्सीमोरॉन है. फिर एलिट्रेशन, ग्रीडी गुड डूअर्स, जी बेनिफिशिएंट बीस्ट, बी. तो यहां पर क्या है हमारा
पोएटिक डिवाइस है। थोड़ा सा फास्ट मैं आज चल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं थोड़ा फास्ट मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, आई डोंट नो, शायद ऐसा हुआ है। बट अगर ऐसा है तो अगर कोई पार्ट रह जाता है, कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप प्लीज़ कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा से करा दूंगी। कुछ फ्लो में ज़्यादा ही आ गई मैं आज, एक ही फ्लो में पोएम कंप्लीट करा दी है। बट आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू ऑल कैन ग्रैब द मैसेज फ्रॉम दिस पोएम, बट स्टिल कुछ भी डाउट रह जाता है, प्लीज फील फ्री टू कमेंट सो दैट आई कैन इम्प्रूव दिस। चलिए, important questions. Why do the people who run the roadside stand wait for the sequel of break so eagerly? ब्रेक की आवाज सुनने के लिए, ब्रेक लगने की आवाज सुनने के लिए वो इतना ईगर क्यों रहते हैं भाई? तो इट मीन्स कोई कार रुकी है तो क्या होगा? इट मीन्स उनसे कोई लेने के लिए आया और उनके मन में होप आ गई है कि शायद उनसे कोई कुछ ले ले, इसलिए वो वेट करते हैं। Explain, soothe them with soothe them out of them with the reference to the poem The Roadside Stand. The powerful men approach the country folk with false promises of providing them with better living conditions and better life. These innocent and simple, मतलब उनको पहले वादे किए जाते हैं, उनको सपने दिखाए जाते हैं और फिर सपने उनके नहीं, खुद के पूरे करके चैन से सुकून से सो जाओ, है ना? So why does Robert Frost sympathize with rural poor? रॉबर्ट फ्रोस्ट क्यों इतना सिंपैथी फील कर रहे हैं? रॉबर्ट फ्रोस्ट ऐसा फील इसलिए कर रहे हैं, unbearable agony of the plight of the rural poor who are ignored and neglected by the rich politicians, the government and party in the power are indifferent of their welfare, they fool them by making, मतलब ये सारी चीजों को देख करके रॉबर्ट फ्रोस्ट को बुरा लग रहा है कि हर कोई उनका फायदा उठाना चाहता है। What was the plea of the folk who had put up the roadside stand? जिन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया है उनकी क्या प्ली है कि वो किसी से भीख नहीं मांगना चाहते, वो किसी से फेवर नहीं चाहते, वो बस इतना चाहते हैं कि यहाँ से जाए, जब लोग उनके आसपास से गुजरे तो उनसे थोड़ा बहुत सामान खरीद ले। The folk who had put up the roadside stand pleaded to the city dwellers to stop and buy their wares so to enable them to earn some extra money for a decent living. They wanted that the rich people who passed from there in cars should stop and buy some goods, मतलब वो उनसे कुछ ले ले, वो उनसे कोई ऐसा फेवर नहीं चाहते हैं कि वो ऐसे ही उनको पैसे दे के चले जाए, भीख दे के चले जाए, ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं है। So these were the important questions we have done. Okay, thank you so much for being with me. Still, if you have any doubt, just feel free to comment down and just let me know your queries. रोड साइड स्टैंड ना थोड़ी सी मुश्किल पोएम लगती है, बट एक्चुअली मुश्किल नहीं है। जब आप इसको रिलेट करते हो रियल लाइफ से, आपको इजीली पोएम समझ में आ जाती है, ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ा फास्ट आज कवर कर दिया है, बट ऐसा है तो आप या तो स्पीड कम कर लेना, स्टिल फिर भी कुछ रहता है तो प्लीज़ लेट मी know by your comment so that I can do something for that. आप कमेंट्स देते रहिए, आप सजेशन देते रहिए, I'll work for it, ऐसे ही improve हो जाएगा। and of course I need motivation and you are my motivation. So thank you so much for being with me. Like, share and subscribe the channel if you have not subscribed it yet. So thank you so much. Bye bye.